Dear students, I hope you all are fine at your home. Now, as we have discussed earlier, we were on the chapter number 2 of a book that was Tables in LibreOffice Base, and what we have learned till now. In the second part, what we have learned, we have understood the database window. Okay, the various components of the database window. After that, we are able to know about what particular section of the database window do what kind of operations. Okay, we have learned about title bar, we have learned about menu bar, toolbar, and window control buttons. We have learned about the database section. It contains four different icons respectively, that is table, queries, forms, and reports. And we have also done the practical regarding how to create this particular table. Now, after that, we have also learned about the task area of the database window and the list area of the database window. What does the task shows to us and what does the list shows to us? Now, continuing further in the part 3, let us learn how to create a new table in design view. There are various options in table section as I have shown you earlier. Just let me show you. Here you can see in the database section I have selected tables and it has there are three different options to create a table. First one is table in design view, then use wizard to create a table. Now moving back, now let us understand. You can also make table in design view for greater control. It gives you greater control over your table, how you want it field to be and which type of a data type you want in each field. Yes, we will discuss about data type also. Let me finish it off first. Here you can enter your field names, description, choose your own field type to associate with each field. You can also set your own primary key. अब प्राइमरी की क्या होती है, एक टेबल में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको शायद बताया था पहले, प्राइमरी की मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी सो दैट वी कैन फाइंड द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर इवेंट. जैसे कस्टमर आईडी, जैसे आपका एसआर नंबर है, आपका एक यूनिक आईडी. You describe the structure when you describe the field within the table. Now, for each field, you indicate the following. First is field name, second is field type. फील्ड नेम में क्या होगा, देयर मस्ट बी अ यूनिक नेम फॉर ईच फील्ड इन द टेबल. अब जैसे आप एक टेबल ले रहे हैं, जैसे मैं मार्क लिस्ट की टेबल ले रहा हूँ, उसमें क्या होगा, सीरियल नंबर दैट इज योर रोल नंबर, देन योर एस आर नंबर, देन योर नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, देन क्लास, सेक्शन. ओके, दीज आर माई फील्ड. इज इट ओके ना? तो ये हो गई आपकी फील्ड्स के नेम. जैसे इन्होंने एग्जांपल में दे रखा है, स्टूडेंट्स टेबल बनाई है, फील्ड नेम है, उसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और फीस. ये हो गए फील्ड नेम. नाउ फील्ड टाइप. अब फील्ड टाइप क्या होती है, द टाइप ऑफ डेटा टू बी कंटेन्ड विद इन द फील्ड. यस, हम लोग यहाँ पे ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे फील्ड है हमारे रोल नंबर्स, तो मिस्टेक ना हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से डेटा एंटर करते टाइम, तो हम फिक्स कर देंगे कि इस पर्टिकुलर फील्ड में खाली न्यूमेरिक डेटा ही जाएगा. ओके, नेम में खाली अल्फ़ाबेटिक डेटा ही जाएगा, क्लास में आपका फिर न्यूमेरिक डेटा जाएगा, सेक्शन में अल्फ़ाबेटिक, ट्रांसपोर्टेशन या फीस में न्यूमेरिक और करेंसी साइन. हम ये फिक्स कर सकते हैं. दैट इज नोन एज द फील्ड टाइप. सम फील्ड्स कैन कंटेन ओनली नंबर्स, अदर्स such as amount paid, current due, and can contain numbers and currency sign. Still, others such as name, address can contain text. Data entry is restricted to valid entry for the type you choose. हाँ, अगर आपने उसमें टाइप चूज कर लिया कि आपको उसमें क्या चाहिए कि न्यूमेरिक डेटा टाइप चाहिए, ठीक है, तो आप उसमें कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट एंटर इन अ फील्ड
सेट फॉर नंबर, यू कैन नॉट एंटर टेक्स्ट इन अ फील्ड, आप टेक्स्ट नहीं टाइप कर सकते उस फील्ड में जिसमें आपने नंबर सिलेक्ट कर रखा है उसका डेटा टाइप फील्ड का। ठीक है, देर आर सेवरल फील्ड्स टाइप to choose from while making databases. We will look at the five categories of the field types in LibreOffice base. That is, first one is integer, second one is floating point, third one is text, fourth one is time and other types. ठीक है, ये दूसरी दूसरी तरीके की होती हैं. Now let me show you an practical example of field name and field type. Now here we are, टास्क में आएंगे, दो ऑप्शन है, डिज़ाइन व्यू और क्रिएट टेबल. डिज़ाइन व्यू से करना है. When we open the design view, what are we able to see here? These are the field name and these are the field type. Okay, these are the field name and these are the field type, and the description of the field type would be here. Now what you have to do, it will show you the field properties. Now यहाँ पे आप जैसे field डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ s number. बाय डिफॉल्ट इसने टेक्स्ट वर्चर ले लिया है. दिस इज द डेटा टाइप, अभी डिस्कस करेंगे हम. दिस इज द एरो, व्हेन यू क्लिक ओवर द पर्टिकुलर फील्ड टाइप it will be highlighted with the blue color. You can click over this arrow and you can select any field you want for this particular data type. समझ गए? समझ गए कि नहीं? नाउ अब नेक्स्ट लेते हैं नेम. ठीक है, नेम के लिए हमने यहाँ बाय डिफॉल्ट वर्केयर सिलेक्टेड रहेगा. ठीक है, हम इसे चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग. जैसे सीरियल नंबर है, मुझे यहाँ पे खाली न्यूमेरिक डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर ले लूँगा न्यूमेरिक. अब यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही एंटर हो पाएगा. और भी काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं. इट्स जस्ट एन एग्जांपल. नाउ लेट अस गो बैक टू अवर थ्योरी सेक्शन. नाउ मूविंग फर्दर. Now data types, what are data types basically? ठीक है, data type define which kind of a data has to be entered in which particular field. Now integers, integer is a whole number, माइनस में भी जाएगा जीरो से पहले और जीरो के आगे भी. देर आर फोर इंटीजर टाइप डिपेंडिंग ऑन देयर साइज. हर इंटीजर टाइप का अपना एक साइज होता है, उतने ही साइज का आप पर्टिकुलर इंटीजर उसमें एंटर कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन आता है इसमें टाइनी आई एन टी, जिसे हम कहते हैं टाइनी इंटीजर. इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंटीजर टाइप, सबसे छोटा इंटीजर टाइप होता है. इसका साइज 28 होता है सिस्टम की मेमोरी पे. दिस फील्ड एक्सेप्ट इंटीजर और होल नंबर. या तो इंटीजर लेगा, इंटीजर मतलब माइनस में ही हो सकता है प्लस में ही हो सकता है, होल नंबर भी लेगा विद अ फिक्स लेंथ ऑफ 3 स्पेसेस. आपकी जो 3 स्पेसेस होती है ना, मतलब 3 कैरेक्टर्स या फिर 3 स्पेसेस, उतना ही साइज का ये इंटीजर लेता है खाली. नेक्स्ट स्मॉल इंटीजर या स्मॉल आई एन टी. इट हैज़ अ साइज ऑफ 216 over the memory of your system. This field accept integers and whole numbers with a fixed length of 5 spaces. ये सब जो इंटीजर की डेटा टाइप है, सारी की सारी इंटीजर डेटा टाइप लेंगे, बस इनके साइजेस डिफर कर जाते हैं. हम अकॉर्डिंग टू द साइज का जितना रिक्वायरमेंट होता है हमें उस फील्ड पे, हम इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये 5 स्पेसेस का लेगा आपका. नेक्स्ट int या फिर इंटीजर. इट्स मोस्ट कॉमनली यूज इंटीजर टाइप with a size of 232. This field accepts integer और whole number with a fixed length of 10 spaces. आपका 10 कैरेक्टर्स या 10 स्पेसेस का जो मेमोरी है ये कंज्यूम करेगा. स्पेसेस आप समझ रहे होंगे, जो स्पेस बार होता है आपका. ठीक है, इस तरीके से, मतलब एक एग्जाम्पल है, एक्चुअली स्पेस बार नहीं होता है, एक एग्जाम्पल है. इट ऑल्सो हैज़ एन ऑटो वैल्यू फीचर दैट फिल्स अप द फील्ड विद द वैल्यू यू सेट ऑटोमेटिकली. बेसिकली क्या करता है, ये जितनी आपने यूज़ करी है और बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिकली फिल कर देता है. नेक्स्ट बिग आई एन टी, that is it has a size of 264, which is really big. This field accept integer or whole number with a fixed length of 19 spaces. 19 स्पेसेस तक की कैरेक्टर को ये ले लेगा. 19 स्पेसेस का बहुत बड़ा हो गया, आप समझ सकते हैं. 7 अगर करोड़ होता है तो 7 स्पेसेस का रिक्वायर रहता है. इट ऑल्सो हैज़ एन ऑटो वैल्यू फीचर दैट फिल्स अप द फील्ड विद द वैल्यू यू सेट ऑटोमेटिकली. जितना आपने सेलेक्ट करेंगे उतना सेलेक्ट कर लेगा स्पेस को, बाकी छोड़ देगा. नाउ मूविंग फर्दर, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप.
बेसिकली डेसिमल्स के लिए हम ये जब हमें डेसिमल इंक्लूड करना होता है अपने डेटा टाइप में, तब हम उसे लेते हैं। इंटीजर में आपका डेसिमल नहीं कर लेगा, वो इनपुट लेगा ही नहीं डेसिमल का। अगर आप जैसे करेंसी का डाल रहे हैं या फिर कोई अमाउंट का लेन देन हो रहा है, तो आप उसमें पैसे में भी मेंशंस करते हैं, करा ही जाता है। तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी आपका इंटीजर में। तो उसके लिए आपको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। वो डेसिमल तो लेगा ही, साथ में इंटीजर्स को भी लेगा और होल नंबर्स को भी लेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नंबर्स विद द डेसिमल और रियल नंबर्स। दे आर मेड of a whole part and a partial part separated by decimal point. These kinds of field can accept numbers more than 17 spaces long. देखो इसका एक सेट है, ये जितने भी हैं मैक्सिमम ये फील्ड जो है मोर देन 17 स्पेसेस तक ले सकते हैं। दिस काइंड ऑफ फील्ड कैन एक्सेप्ट नंबर्स मोर देन 17 स्पेस लॉन्ग। मतलब ऊपर के डेटा टाइप से भी, इंटीजर के बिग इंटीजर से भी ज़्यादा स्पेसेस। नाउ अब इसमें भी सब डिविजन्स हैं, डेसिमल एंड न्यूमेरिक। दीज टाइप हैव अनलिमिटेड रेंज। इनकी कोई रेंज ही नहीं है, कहाँ तक आप इसको स्पेसिस ऑक्यूपाई करवाओ। When you define them, you specify the total number of digit or the places allowed and the number of those digit which will be fall after the decimal point. आप जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज इसमें दे रखा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ मेरा माउस कर्सर है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है दिस, ये जो इन्वर्टेड के अंदर है ये है नंबर। नंबर मतलब ये कोई फील्ड होगी, मैंने आपको फील्ड टाइप करके बताई थी, फील्ड होगी। उसमें इसने प्रॉपर्टी दे दी कि उसमें डेसिमल होगा और क्या होगा, 10 जो है इस प्लेसेस होंगी और 2 जो है डेसिमल 2 की, और उसमें ही 2 प्लेसेस जो है डेसिमल की होंगी आपकी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वुड मीन द फील्ड नेम नंबर दैट हैज 10 प्लेसेस। उसमें 10 प्लेसेस का ही कोई सम आएगा, कोई भी नंबर आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, वो 10 प्लेसेस की ही आएगी with 2 after the decimal point, with 2 after the decimal point, so that the largest number for the definition would be 9999999.99। ये देखिए कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर था 10। ठीक है, 10 प्लेसेस हो गई, यहाँ पे 10 प्लेसेस है, और ये जो 2 है ये डेसिमल के, डेसिमल वैल्यू इसके बाद। ठीक है, नाउ रियल, दिस फील्ड कैन होल्ड नंबर्स विद मोर देन 17 स्पेसेस। अभी आपको बताया था कि मतलब कोई एक्सेप्ट कर सकता है मोर देन 17 स्पेसेस, बट रियल जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट, इसमें क्या होता है, ये भी मोर देन 17 स्पेसेस तक ही ले सकता है। मतलब सभी जितने भी इसमें डेटा टाइप होंगे फ्लोटिंग में, वो 17 स्पेसेस से ज़्यादा ही स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। इट स्टोर्स डेटा इन द वे कंपैटिबल टू अदर डेटाबेसेस। और भी डेटाबेस एप्लीकेशन होती है, खाली आपका लिब्रे ऑफिस बेस नहीं है, आपका एम एस एक्सेस भी है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, और आपका ओरेकल के डेटाबेस सर्वर्स आते हैं, तो उन सब के साथ कंपैटिबल रहता है ये रियल वाला। डबल, दिस फील्ड कुड कैन ऑल्सो होल्ड नंबर्स मोर देन 17 स्पेसेस। ये तीनों में ही कॉमन है। ठीक है, theoretically doubling the amount. It also store the data in a way compatible with the other database application. अब database की और भी एप्लीकेशन होती हैं, रियल और डबल दोनों वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ आपको एक पर्टिकुलर डेटाबेस को और अदर एप्लीकेशंस के साथ सिंक कराना होता है या यूज़ भी करना होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक डिफरेंस है डेसिमल, न्यूमेरिक, रियल और डबल के बिटवीन। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में सब कुछ आ जाता है। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर जिसमें नंबर भी होगा, ठीक है, जिसमें सिंबल्स भी होंगे, जिसमें और कैरेक्टर्स भी होंगे, डेसिमल्स भी होंगे, सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन जो स्ट्रिंग की आएगी, स्ट्रिंग वेरिएबल आर यूज टू स्टोर टेक्स्ट, नंबर एंड और अदर स्पेशल कैरेक्टर। सब कुछ अपने अंदर रख लेता है ये। सबसे पहला आता है इसमें वर्चर। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर इसका फुल फॉर्म है, दिस इज द डिफॉल्ट फील्ड टाइप दैट एक्सेप्ट लेटर्स, नंबर, पंक्चुएशन एंड
मोस्ट अदर करेक्टर, ये हर चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है इसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट की जगह कि इंटीजर खाली आपका होल नंबर ही लेगा और फ्लोटिंग पॉइंट जो है डेसिमल वैल्यूज़ को एकम्पनी करेगा। इसके अंदर आप सब कुछ लिख सकते हो, लेटर्स, नंबर, पंक्चुएशन और भी कोई कैरेक्टर। अब इनकी ये जो आपको नंबर ऑफ वर्चर दिख रहे हैं डेटा टाइप्स टेक्स्ट के अंदर, इनकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ये। विद वर्चर यू डिफाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर अ फील्ड। दैट इज आपने एक फील्ड ले ली, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिख रहा है ना आपको, दैट इज द नेम ऑफ द फील्ड। नेम इन्वर्टेड कॉमा में ले नेम वर्चर 30, मतलब इस फील्ड में मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स यूज होंगे वो होंगे 30, वो होंगे 30 फॉर अ वेरिएबल नेम that can have up to 30 character. If you do not use all 30 characters, the field will only use the required space in the database. मतलब जैसे आपने कोई नेम लिया, जैसे नेम ले लिया, अमन का नेम ले लेते हैं, आपने वर्कैर लगा रखा है वहाँ पे उस फील्ड के अंदर, ठीक है, तो वो 4 स्पेसिस को ऑक्यूपाई करेगा और बचे हुए 26 स्पेसिस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो अपने पास कैप्चर करके नहीं रखेगा 30 स्पेसिस को। इससे क्या होता है कि सिस्टम की स्पेस रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, मेमोरी की स्पेस रिक्वायरमेंट भी बचती है। तो ये एक फ्रेंडली डेटा टाइप है टेक्स्ट, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट आ जाता है वर्चर वर्चर इग्नोर केस। दिस फील्ड इज सिमिलर टू वर्चर। ये सिमिलर है वर्चर के, पास डिफरेंस क्या है, मतलब वही है, इसकी लिमिट भी 30 करेक्टर्स तक की है। डिफरेंस क्या है कि ये लोअर एंड अपर केस एंट्रीज को कंसिडर नहीं करता है डूइंग अ सर्च और क्वेरी। अगर सर्च और क्वेरी होती है तो ये क्या करता है, अगर आप सर्च एंड क्वेरी करते हैं तो ये अपर केस या लोअर केस एंट्रीज को कंसिडर नहीं करता। जैसे आपने नेम डाल रखा है, वो कैपिटल में डाल रखा है, तो ये जो है दोनों को कंसिडर, दोनों में ढूंढेगा। अगर अमन आपने कैपिटल में डाल रखा होगा उसको भी लेके आएगा रिजल्ट के तौर पे आपके सामने, और अमन जो आपने स्मॉल लेटर्स में डाल रखा होगा उसको भी लेके आएगा। अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर और लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर्स इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। नाउ नाउ कैर एंड कैरेक्टर, और कैरेक्टर कह सकते हैं आप इसे। इट्स अ फिक्स्ड साइज फील्ड। दिस फील्ड इज ऑल्सो सिमिलर टू टेक्स्ट वर्चर field. The difference is that length of the field must be fixed to a certain amount of character. If the given text does not fill in all the spaces, the text is padded with the spaces. अब इसमें क्या होता है, अब वार्चर के बारे में आपके क्या पढ़ा था, जैसे उसमें आपने एक लेंथ डिफाइन करी है, 30 की लेंथ डिफाइन कर रखी है आपने, ठीक है, 30 की लेंथ ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन कर रखी है आपने, ठीक है। तो वो अगर आपका जो इनपुट है 4 कैरेक्टर का है, तो बचे हुए 26 कैरेक्टर्स का स्पेस जो है वो कहीं और अलॉट कर देगा, वो अपने साथ बचा के नहीं रखेगा, पकड़ के नहीं रखेगा उस स्पेस को। लेकिन कैर में क्या है, अगर जैसे आपने 10 लेटर्स को इसके लिए डेडिकेट किया, 10 स्पेसिस को इसके लिए डेडिकेट किया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर आपने 4 लेटर का वर्ड इनपुट किया उस पर्टिकुलर कैर डेटा टाइप के फील्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा, 4 तो स्पेस ले गई, साथ में 6 वाली स्पेस को भी कैप्चर करके अपने पास रखेगा। वो छोड़ेगा नहीं उसे कि कहीं और यूज हो जाए जहां जरूरत हो। ये डिफरेंस होता है कैर और वर कैर में। नाउ नेक्स्ट, लॉन्ग वर्चर। इसमें क्या होता है लॉन्ग वर्चर में, इट इज डिजाइन फॉर लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे जब आपको बहुत ही बड़ा टेक्स्ट मेमो या किसी भी चीज़ में लिखना होता है, कोई बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है या बहुत बड़ा टाइटल लिखना होता है या कुछ भी लिखना होता है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करेंगे लॉन्ग वार्चर को। इट इज़ सिमिलर टू टेक्स्ट वर्चर field. The only difference is it can immediately accommodate entries with the length of over 2 billion spaces. आप 2 billion spaces समझ रहे होंगे, it's a very vast space, and you can type many things, many type of मतलब you can write a letter, even you can write a letter in long varchar data type. Now we would be summarizing here as आगे 2 डेटा टाइप्स बचे हैं, डेट टाइम एंड अदर टाइप्स के, लेकिन हम उसे जो है लेटर ऑन नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करेंगे जब मैं आपको क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डिज़ाइन व्यू सिखाऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आई वुड बी टेलिंग यू हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर आपको दिखाऊंगा। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेटिंग अ प्राइमरी की ऑल्सो एंड सेविंग अ टेबल, ओके।
till then beta keep revising and please beta complete your work. You have not completed your written work also. ठीक है, रिटर्न वर्क तो एटलीस्ट आपको कंप्लीट करना ही है. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड यू अ पीडीएफ ऑफ इट, क्वेश्चन एंड आंसर, वो आप कंप्लीट करिए. और एक्सरसाइजेस मैंने आपको वीडियो में, जो लास्ट वीडियो था हमारा फर्स्ट चैप्टर का, उसमें इंक्लूड कर दी थी. ठीक है, थैंक यू.